मेरे को एक सिचुएशन में डाला जहाँ पे मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहती, कर देंगे वो, पीछे जाके वो नहीं करा। तो प्रिंस भाई बीइंग सो फटे वो, और वो जो फटे मजा आ गया वो हो। Every time, in every situation, they were trying to have this love triangle with. I was like, why you need this? Because it's not Splitsville or anything. Yeah. कि आप love angle दिखा रहे हो. Guys, okay, again a spoiler. मुझे select नहीं करने वाले थे ये लोग. You still in touch with Bhumika and Pihu? I'm connected with. Bro, ले सकते हो. मिर्ची का है. Who? I can do this. Go ahead. So spicy. लड़कों इसको अलग तरीके से मत लेना. No, I didn't mean it. What? If you know, you know. Oh shit. Vashu was better in task than Prakram, and Shiveth was the actual winner for you. And Prince Bhai? Prince Bhai being Prince Bhai, he's love. He's someone जो मेरे ना भाई की तरह नहीं होता, तुमसे लड़ भी लो कुछ भी कह लो, फिर at the end of the day you're like oh it's okay. Yeah. क्या खाएंगे बताओ. करती जब मैं बात से करूँ मैं रात हाथ से ना बोलती मैं खतरनाक है जब कर दूँ 3 लाइनों में ही लाइफ तेरी नर्क में. Also about what's your take on Karanveer winning Big Boss and also Digvijay's journey in Big Boss? Now we came to the main question. I like it. You being like oh let's just cut to the chase. Yeah. Can I just do one thing? I can dip can I dip in every? Up to your discretion. So Cheers. it's a bomb for the bomb. I hope you survived this. What's up everyone? Welcome to the Lean Guy Show. My name is Amal and guess आज कौन आ गया है? भाई 2 महीने से रेगुलरली बात करने के बाद आज करेंगे नहीं, कल करेंगे नहीं, परसों नहीं, आज करेंगे भाई मैं वो इवन आई एम श्योर जो हमारे साथ गेस्ट हैं आज वो भी यही बोलते हो क्यों नहीं पा रहा हमारा शो. बट फाइनली द डे हैज कम. यू हैव बीन रिक्वेस्टिंग दिस गेस्ट टू बी ऑन आवर शो एंड डू दिस हॉट सॉस चैलेंज एंड फाइनली शी इज हियर. जस्ट इमेजिन क्या तहलका होने वाला है. इन्होंने जो रोडीज में जो तहलका मचाया था, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ हर एंड फाइनली शी इज हियर. लेट्स वेलकम हर. प्रियंका गुप्ता. व्हाट्स अप? Hi, what's up? Hi. वाओ, दो अलग टाइप की एनर्जी नहीं हो गई. ये हाय नहीं बट गुड ब्रो. Our audience had been really wanted you to come to our show, and finally you are here. So thank you so much first of all for coming to the show. Thank you for calling me. Yes, and Finally, I made it. Okay, bro. Shall you start with the first one? Yeah. Let's do this. Okay, let's take एक potato bite उठा लो आप. Bro, first one, नागिन का Indian smoky भूत झुलकिया. Let's try. Let's try, bro. Cheers. Yeah, cheers. Have it. पहले मैं आपको रिएक्शन देखूंगी ना. Of course. कुछ नहीं है यार इसमें. Master of this. No, bro, not yet. But I'll tell you one of the things. लड़कियों का ना टॉलरेंस स्पाइस में लड़कों से बहुत ज़्यादा. I've seen that. A lot of girls. Naira, I guess she was able to do the entire challenge without even taking a single power. हाँ, मैं प्रूफ करती हूँ गलत. क्योंकि आपने ऑडिशन में बोला था कि आपके पास थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, तो प्रॉब्ली इस चक्कर में वाला फैक्टर भी हो सकता है. एनर्जी है यार वो तो. It's different. You feel it? Yeah, of course I feel it. Wow, bro, मेरा काम है बताना. पावर अलाइव है. No, वो तो of course I don't eat spicy food at all. तो लगेगा ये. Okay, ठीक है. So, okay, bro. The first question. Okay, most of the questions are by the audience itself and curated by our team actually that way. The first question is, why did you choose roadies? क्या motive था and how was it being there to witness the fights, the banters, the friendship, and then finally Karame Khan becoming one of the successful seasons of roadies? Yeah, of course, that's me. I was in the show. So why did you choose? Why I chose roadies? Because इससे पहले भी मैंने ऑडिशन दिया है और मेरे को इस जर्नी पे इसलिए जाना था because this is the only show which gives you a power to see yourself. समझ रहे हो आप, क्योंकि आप शो में होते हो 24/7 कैमरा होता है तो यू कैन नॉट एक्ट मोस्ट ऑफ टाइम. लेजेंडरीज हैं कुछ जो करते हैं बट मोस्टली अगर आपको खुद को देखना है पहली बार आप जा रहे हो तो इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सी योरसेल्फ वेयर यू आर लैकिंग, कहाँ पे काम हो सकता है, कहाँ पे आपका एक्सेल है, वहाँ पे जहाँ पे आप एस देख रहे हो.
तो Yeah. मेरे को था कि I want to see myself. So Yeah. the first time I gave the audition, Yeah. the very first time I get the PI, Yeah. personal interview round. Okay. But वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. I gave in like what 2018-19 Real Heroes. Okay. Okay. Yeah, Roadies Okay. Real Heroes. Before COVID. हाँ, उसका PI है मतलब कहीं ना कहीं तो. Okay. Yeah. Yeah. फिर उसके बाद I thought like I need to work on few things, specifically on myself. Yes. ऐसा नहीं कि मैं रेडी नहीं थी उस टाइम, रेडी थी, बट उस टाइम में ना ऐसा होता है आपकी एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा इधर उधर होती है. सो आई थॉट टू चैनलाइज दैट एनर्जी, तो आई टुक अ सोलो ट्रिप. Okay. आई टुक 2 years of solo trip और फिर उसकी चीज़ें अलग हुई, मैं अकेले मतलब बहुत चीज़ें समझ आती है अपने You went बारे to में. which place? आई स्टार्ट इंडिया में ही, ऐसा नहीं बाहर कहीं पे, इंडिया में, बिकॉज आई चिल विद अ लॉट ऑफ एम्बेसी पीपल. जब वो हमारे कल्चर को अप्रिशिएट करते थे ना, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि आई थॉट इट्स वेरी बेसिक. Yeah. पर जब मेरे को समझ आया ना, तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट. Okay. वंस आई डन द रीडिंग पार्ट, Yeah. तो मैंने कहा एक्सप्लोर करना बनता है. Yep. तो वैसे ही आई स्टार्टेड विद गोवा, 1 month this, 1 month that, one other place, मुंबई, पुणे, ये वो, केरला छोड़ के मोस्टली एवरीवेयर आई बीन. And I'm from Kerala. ओह, मैं भी केरला से ही हूँ, मैं भी मतलब वहीं से है मेरा खून थोड़ा. Yeah. लेकिन पता नहीं चलता, दोनों देखो, दोनों मल्लू साथ में, पता ही नहीं चल रहा. या वही तो. Delhi it is. तो फिर मेरे को लगा कि मुझे देखना चाहिए अपने आप को कि मैं कैसे लगने वाली हूँ. Yeah. तो आई गिव द ऑडिशन आफ्टर लाइक 5 years. जब मैं 20 साल की थी तब ऑडिशन दिया था. देन आई गिव ऑडिशन व्हेन आई वाज 25-26 के बीच में. एंड थिंग्स हैपन, ऑल्दो जैसे मैंने प्लान करा वैसे नहीं हुआ, बट इट हैपेंड फॉर मी. एंड आई एम सो ग्लैड अबाउट द शो MTV रोडीज, कि वो है ना जेन्युइनली आपको है ना शो के बाद एक अलग इंसान बनाता है. नॉट बिकॉज ऑफ द फेम, बट जो जर्नी होती है ना 1 महीने की, तो यू सी दैट आपके अंदर कितना पोटेंशियल है इतनी चीजों को करने का, एंड एट द सेम टाइम सर्वाइव करके एंड तक पहुंचने का. इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेन, यू नो, कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप किसी अपने प्यादे को परफॉर्म कराओगे. Exactly. सो यू कैन सर्वाइव. Yeah. सो देयर इज अ लॉट ऑफ माइंड स्ट्रेटजी गेम हैपन. तो आप रियल लाइफ को भी ना डील करना सीख जाते हो. Yeah. Yeah. तो आई थॉट इट हैपेंड. So, how was it like, you coming from, a different culture altogether, and then Roadie is such a big thing, like, that's an aspiration for maybe probably like, half of the youth, to go over there, and then you finally being able to made it to top 33 actually. No, 32 I कितने? was in top 9. मतलब उस हिसाब से, मतलब ओवरऑल जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे उसमें अच्छा, जितने लोग सिलेक्ट हुए थे, it was कितने लोग थे हम? 32 थे. हाँ, 32, yeah, exactly that. Right. So from that standpoint I would say, like, and also the way that you cracked the audition. Bro, hello, मेरे को इतना ज़्यादा appreciate होता है ना that my journey was so, sorry guys for my language, but so कि मेरे को एक सिचुएशन में डाला जहाँ पे मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहती, फिर मेरे को कोई पसंद नहीं कर रहा है, और फिर वो सारी स्टोरीज मेरे ऊपर ब्लेम खेल रहे हैं क्योंकि आई वाज नॉट क्राइंग. एंड देन द होल जर्नी वाज सो वियर्ड फॉर मी, क्योंकि मेरे को बैकपैकर की तरह जाना है. जैसा माउंटेन्स में जाते हो ना नए लोगों के साथ, मुझे वैसे जाना है. और मैंने करा भी वही. एंड इट हैपेंड फॉर मी इन अ गुड वे, बिकॉज माय वाइफ वाज सो गुड इन द शो. आई वाज नॉट डूइंग हियर देयर स्टफ जो लोग पीछे कर रहे थे कि कर देंगे वो, पीछे जाके वो नहीं करा. बट एनीवे, तो मेरे को था कि मेरे को ओपनली खेलना है, मैं जैसे रियल वर्ल्ड में मेरे को वैसे ही दिखना है. फिर मे बी आई कैन वर्क ऑन फ्यू थिंग्स, राइट. सो वो दिखा, मुझे समझ आया, और मैं कहा ये तो चल रहा है, मतलब what I am in the real world is selling out there. Exactly. So why not? So I'm just being me. That way. Yeah. And how was it like, experiencing and seeing all the banters between Prince Bhai, Gautam sir, and all the fight, friendship, everything over there? Like, it's one of a kind thing. Of course यार, तुम अपने सामने 2 लोगों को लड़ते हुए देख रहे हो जो अपने सीजन के बहुत अच्छे थे प्लेयर, no doubt. Yes. कि मेरा ज़्यादा liking towards Prince Bhai है, क्योंकि वो अच्छे इंसान है और वो सबको साथ लेके चलने वालों में से है. But not the other guy, guys. Yeah. तो जब वो लड़ भी रहे थे ना, तो तुम देख सकते हो कि कौन पिटेगा, है ना. तो हमारी गैंग में आप जितनी बार एपिसोड देखोगे ना, आप देखना कि पहला एक फाइट था जिसमें हमने आके थोड़ा कोशिश करा, दूसरी तीसरी फाइट में तो we were not even saying anything. मैंने कहा जाओ मारो, because अब आप इतने नर्व्स पर आ गए हो किसी के कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कॉर्नर करे किसी इंसान को, तो टेक्निकली वो कॉर्नर ही लग रहा था. Exactly. तो प्रिंस भाई बीइंग सो फटे वो, और वो जो फटे मजा आ गया, ओहो, that was so me. Man. क्योंकि गुस्सा आ रहा है तो निकालो ना. Yeah. बस निकालो. Wow. And वो शायद पूरा entire season चला ना, मतलब it was like they never were friends during the season, no? यार मेरे को
See, I don't know the equation, Yeah. how industry works. Yeah. ठीक है? Yeah. कभी कभी क्या होता है, just to be in good around, क्योंकि सेम सर्कल में आप उठते बैठते हो तो आप नोशन नॉर्मल कर लेते हो, Exactly. इक्वल कर लेते हो या न्यूट्रलाइज कर लेते हो कि ठीक है हाई लो तक रखेंगे. अब उनका शायद हाई लो हो सकता है, हाँ. but internally they started off as fighting, like all the Yeah. time they are fighting and they are not even accepting on a one point any of the time. तो वो मन में रहता ही रहता है, नो डाउट. आप कितने भी रियलिटी शो वाले लोग आएंगे, Exactly. सबको है ना किसी से ग्रज है, सामने कोई नहीं बोलेगा, बट चिल करना है बिकॉज दे हैव टू बी लाइक Together in the same industry. दिखना भी तो है ना. दिखना भी तो है. हाँ. तो दिखने के लिए तो बहुत चीजें लोग करते हैं. But it was not fake actually. What? The fights and all that. No, they were not fake at all. Like, मेरे perspective से it was not fake. Okay. मेरे को तो मजा आ रहा था. Okay. And how was it making friends with a lot of people over there? Obviously, I mean, you must have. यार मेरे साथ क्या था, मैं ना I was a provider, to be honest. तो मेरी जिससे नहीं भी बन रही थी ना, अगर उसे कुछ सामान चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड कर रही थी, तो मेरे को मेरे टेंट के बाहर जाना नहीं पड़ता था. गौतम के टेंट में भी मैं सिर्फ एक ही बार गई हूँ, जब मैं इम्यून थी और मेरी पूरी गैंग नॉन इम्यून थी, जब मैं जोकर वाले उसमें बनी थी. मैं तभी गई थी क्योंकि मुझे पता है कि इनकी अलायंस है, तोड़नी जरूरी है. तो आई हैव टू डू समथिंग व्हिच इट कैन लाइक इम्पैक्ट देयर फ्रेंडशिप. और वो हुआ. तो मुझे था ठीक है, मेरे को मेरी गैंग को बचाना, बिकॉज उन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्ट करेंगे. अगर मैं उनको सपोर्ट करूंगी तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे. ऐसे गैंग चलता है. मैं अपने टेंट से बाहर ही नहीं जाती थी. जिसको कुछ भी चाहिए होता था वो टेंट में आके लेता था, और फिर मैं उससे डील भी नहीं करती थी. अगर वो कुछ एक चीज मांग रहा है तो मैं दो दूंगी. तो चिल कर, कोई बात नहीं. मतलब दिमाग फट जाता है क्योंकि अंदर है ना, कोई भी किसी भी तरीके की है ना, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती. रहने से लेके, खाने से लेके, आपका टाइमिंग से लेके, एंड कैमरा और अदर शूट्स आल्सो हैपनिंग एट द सेम टाइम. अगर MTV रोडीज का टास्क वगैरह खत्म हो गया तो वी हैव डिफरेंट videos and all that. Yes, Yeah. to shoot for. Yeah. So it was lot fucked up for everyone. Okay. But I made sure कि मैं टाइम से सोऊं, टाइम से उठूं, और मैं अपना अच्छे से परफॉर्म करूं. बिकॉज व्हेन यू आर फिजिकली मतलब एट पीस, यू कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशंस अराउंड यू. आप उस सिचुएशन में बहुत काम रह सकते हो, समझ सकते हो चीजें. आप अगर फिजिकली अनस्टेबल हो रखे हो ना, तो कोई कुछ भी बोल देगा ना, भड़क जाओगे. Exactly. तो वही नहीं करना बस. So from now on, OP provider. ये देखो, मैं बोल नहीं सकती, बट ये सबको पता है. मतलब जो मेरी सीजन है ना, इतना बोलना मेरे काफी है कि who was the provider of the show. She's a rider provider. It Good. is what it is, bro. But nice, bro, nice. Bro, I'm already, feeling the vibe of yours. Like, कहते हैं कि एक जैसे एक नोशन क्रिएट हुआ था ना, मतलब एक कैसा notion? नोशन मतलब ये कहते हैं कि एकदम जैसे ऑडिशन में भी you were like barely laughing, like barely having a smile on your face. I know audition would have been very tough. कोई आपके सामने बोलेगा घूम जाते तो आप हंसोगे थोड़ी ना. Exactly. जहाँ मैं मजाक कर लेती हूँ वहाँ पे वो मुझे छोड़ते भी नहीं. तो I have to be very like strict with my body language, even the way I was portraying myself. Any word even comes out. Yeah. तो वो मेरे पीछे इतना ज्यादा पड़ गए थे ना उन्हें, क्योंकि एक तो मैं रो नहीं रही हूँ, एंड माय बॉडी लैंग्वेज लाइक वो कुछ भी कर लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. तीसरा, I'm not just talking to them, I'm talking to everybody, even production also. Okay. There's like 100-200 people are watching you. Yeah. So I've been talking to everybody. कि I know who's behind this camera, कि वो मेन इंसान कौन है जो आपको सेलेक्ट करने वाला है. कि इतना मत करो कि किसी को ज्यादा हर्ट हो जाए. बिकॉज जब मैंने पहली बार दिया था ना, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ हेट. ठीक है, एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. और मेरे को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था. बट दिस टाइम आई मेड श्योर कि जितना भी मेरे पास आएगा ना, ऐसे बूमरैंग की तरह वापस जाएगा सेम एनर्जी से. तो आई मेड श्योर कि वो सेम एनर्जी सबको मिले, और वो मिली भी है. Yeah, that's me, bro. Normally. But that was such a vibe, man. That was saying like, wow, these people are like, trying to like, not instigate to गलत word हो जाएगा, but every time, in every situation, they were trying to have this love triangle with. I was like, why you need this? Because it's not Splitsville or anything. Yeah. कि आप love angle दिखा रहे हो क्योंकि आप शो में कुछ content नहीं मिल रहा है. Exactly. पर मेरे को मजा आया क्योंकि मेरे थ्रू था ना कि एक तरफ इधर, एक तरफ इधर. But you cracking that audition, was that expected or not? No, bro, not at all. बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि जिस तरीके से मैंने एंटर करा, मुझे ही पता था कोई है ऑलरेडी वहाँ पे. मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे पीओ होने वाली है. बट जैसे मैंने एंटर करा ना, तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं ये दिखा दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं आज तो फन में रहूंगी. जैसे ही दिखा ना मुझे कुछ इंसान, तो मैंने कहा आज तुम्हारे फन लगेंगे, तुम जरा सीधी हो जाओ. एंड आई एम लाइक स्माइलिंग, सेइंग हेलो एवरीवन, एंड in my heart, in my mind, I was like, bro, now you're
बिकॉज वो इंसान कर रहा है यहाँ पे जहाँ के जो होता है ना, आप लाइफ में किसी का ठीक नहीं करना चाहते, Exactly. वो इंसान है। कोई ठीक वाला भी होता ना तो आप थोड़ा ईज में निकाल देते हैं। इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर हर आल्सो, तो वो कितना इमोशनली ड्वेल करेगी इस फीलिंग पे, आई डोंट नो, बट आई मेक श्योर कि ज्यादा ना खींचे, एज इन कि ना उनको बुरा लगे ना मेरे को कहीं एंगल तक बुरा लगे। देखना बहुत जगह मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ कि डोंट से इट, इट्स ओके, डोंट से इट। Yeah, because it has to be, because वो भी इंसान है ना at the end of the day. But was that thanks to Sonu sir who? ये production है, not the Sonu sir. Okay. Yeah, Sonu sir is the face of the production. Yeah. तो ये पहले guys, okay, again a spoiler, कि मेरे को सिर्फ कंटेंट के लिए लाया गया था फर्स्ट, उसके लिए मुझे सिलेक्ट नहीं करने वाले थे ये लोग, बट बिकॉज वो केमिस्ट्री वाला, वो जैसे उन्होंने देखा ना कि बंदी का वाइब अलग है, एटीट्यूड अलग है और ये किसी की सुन नहीं रही है, एंड दिस इज द ओनली कैरेक्टर सो फार वी कैन फाइंड, तो उन्होंने फिर वो ब्रेक लिया है बीच में। दोनों वो हुए, वो सेलेक्ट हो गई, मैं नहीं हुई, ब्रेक लिया है, फिर दोबारा वो रीटेक हुआ है और वहाँ पे प्रोडक्शन डिस्कशन तो करी हुई ना पीछे, तो बस वहाँ डिस्कशन में पता चला कि नाम किसका, प्रियंका गुप्ता, सो दे वर लाइक ओह लेट्स गेट हर टू द शो। हाउ डिड यू फील दैट? ओ भाई सब ये क्या हो गया? या इट वाज लाइक वूहू। So yeah, bro, that way, like, you know, जैसे सोनू सर ने select किया, I mean, you know, would have been really amazed, भाई मैं select हो गई करके ना। Of course, मेरे को तो सबसे पहला feeling है, the gangster feeling, you know, कि ऐसा कुछ हुआ कि सब मेरे against और एकदम कुछ हुआ, my luck worked or anything, my prayer worked or anything worked, और मैं select हो गई। और initially, it's not easy to be in that room. Initially 2 minutes, it's not easy to be in that room. बिकॉज इतना प्रेशर आ जाता है, इतनी लाइट्स तुम्हारे ऊपर होती हैं, नेशनल टेलीविजन है, इस पे तुम्हारी जिंदगी दिखेगी, तो यू हैव टू बी वेरी सर्टेन विद योर कॉन्वर्सेशंस, राइट? सो आई मेड श्योर कि जो मैं बोलूं सबको समझ आए। बट ब्रो दैट वाज बैंग ऑन ऑडिशन एंड जेन्युइनली, लाइक कहते हैं ना कि मतलब नो वन, यू नो, काइंड ऑफ gave back to the judges as much as you did in all the auditions. Select भी हो गए। ये first time हुआ bro, मतलब generally तो लोग बोले कि नहीं भाई rejected, अभी rejected, but then again miracle has to happen, तो हो ही जाता है। वो एक किस्मत वाली बात है। But किस्मत, and then obviously your efforts. I think I was ready also कि अगर वो नहीं भी होती मैं तब भी वो क्रैक कर जाती, बिकॉज बहुत चीजें उन्होंने नहीं दिखाई है जो वहाँ पे हुई है, जिसमें आई वाज टेलिंग देम कि आई नो दिस इज योर कॉन्सेप्ट, कर्म एंड कांड अच्छा बुरा दिखाने का होगा आपका, बट इफ यू नो मी डिफरेंटली, इफ आई वुड हैव कम फर्स्ट or you know me differently, शायद आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होता towards me. I can make sure. मैंने कहा आप गुस्से वाला साइड देख रहे हो, अभी ये वाला साइड देख, because you made me to be in this situation. Yes. Although I'm not like this in real world, I'm like a teddy bear, bro. That Ted in that movie, right? Angry teddy bear, just teddy bear stuff. Hard to understand or kind of, you know, even imagine you being like, you know, kind of that. Because एक aura है ना, एक personality, pro always like bang on kind of, you know, personality, but then, you know, but this is a different side that we can see of you. Of course, you learn in your life, you grow. जब जितने हरामी लोग तुम्हारे आसपास होंगे ना, आप सीखोगे उनसे कि हाउ टू डील विद हरामी। तो आई गेस मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतने लोगों से मिले हैं, तो नाउ आई नो हाउ टू डील विद individually everyone. जरूरी नहीं हर कोई इस रूम में सेम इंसान बैठा होगा, but I can gel up with anyone. I can like do anything. कोई बदतमीज हो रहा तो I will be double बदतमीज. So yeah. But yeah, good to know that कि bro you have a different side, and that too a Teddy वाला, very hard to imagine, but man wow, you know. Yeah bro, मैं बहुत पंगे लेती हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह से, you won't even believe. No bro, thank you so much, and we really loved your journey entirely in Karamekant Stories. So that was seriously amazing, and loved your auditions. जो first person who gave it back to the judges and still got selected. Amazing bro. Yeah, मेरे को भी तभी आधे ज़्यादा लोग मुझे इसी चीज़ के लिए appreciate करते कि bro your audition was so bang on. Because everybody thought, even when I saw my audition when I came out, I saw audition, मैं रूड लग रही हूँ, मेरे को खुद मैं बदतमीज लग रही हूँ कि अगर मैं थर्ड पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, तो आई सी माई सेल्फ एज अ वेरी रूड पर्सन कि क्यों हो गई सेलेक्ट, बट मेरी जो जर्नी रही ना वो बहुत क्रेजी थी, एंड आई वाज स्टिल रॉ, आई वाज नॉट डूइंग एनी जैसे वो लोग करते हैं, हाँ स्क्रिप्ट करते हैं या खुद को अच्छा दिखाने के लिए दो लोगों को लड़वाते हैं. I was not doing that. I was like a backpacker, enjoying the moment, knowing everybody individually. Yeah, doing stuff. जैसे कैंप में सारा प्रोडक्शन हो जाता था तो हम जाके पहाड़ों पे ऊपर जाके ऐसे लेटे हुए चांद देख रहे हैं, बिकॉज हमारी सारी लोकेशन बहुत सुंदर थी. खाई के पास थी बट बहुत सुंदर थी. और जेन्युइनली खाई पे ही जाने वाले की सिचुएशंस थी. और हाँ, yeah. Hypothetically.
But bro, seriously man, we loved your journey. And from that point, we are moving on to the next one. This is Habanero ka peri peri hot sauce. Okay, it's peri peri. I think it's fine. लो यार ज़्यादा लगाऊंगी लो. Yes! I've seen people just dip like this small. वो यार. Normally हो गई है. पर कितने Tangy taste. स्पाइसी इतना ज़्यादा स्पाइसी कैसे हो सकता है? ये sarcasm था. Oh. Okay, so this one is, what was your most memorable moment from the journey? Tell us a bit about, कोई ऐसी चीज़ जो हम लोग को अभी तक स्क्रीन में नहीं दिखी हो, but वो भी आपने एक्सपीरियंस की हो जो स्क्रीन में नहीं आई हो, and then obviously what was your most memorable journey in I roadies? think my funny side hasn't come on the screen yet. But जो back end में हुआ था. Yeah. हाँ, okay. So first is this. Second जो मेरे लिए memorable moment है कि is spending time with my whole gang. समझ रहे हो वो आप इतना ज़्यादा सिंक में हो जाते हो ना कि आप बिना बोले हुए ना बहुत सारी बातें समझ जाते हो because we have to do it that way. हमारी माइकिंग हो रखी होती है ना तो सारे तो समझने पड़ेंगे फिर समझना पड़ेगा उसे ऑपरेट कैसे करना है थोड़ा ऐसा कुछ कर सकते हैं गैंग डिस्कशन एंड ऑल कि इनको पता ना चले. So we were also playing very smart in a way, but I get to know a lot of things about in the back end, like previous season. Okay. कि जब ये लोग vote out वगैरह करते हैं ना, it's just the side of the show, maybe you can try. तो जब ये लोग vote out करते हैं ना, तो बीच में breaks भी होते हैं. So everybody asks for, I have to go to washroom, I have to use the loo and anything like that. तो हमारे वाले सीजन में उन्होंने क्या करा अगर किसी गौतम गैंग से किसी बंदे को वॉशरूम जाना है तो वो उनकी टेंट में नहीं जाने देंगे. वो कहेंगे नहीं तुम प्रिंस गैंग की टेंट में जाओ वहाँ वॉशरूम यूज करो बिकॉज दे थिंक कि शायद ऑलरेडी वहाँ पे ना कुछ जाके जो पहला बंदा वो लिख के कुछ आना जाए जो प्रोडक्शन को ना दिखे क्योंकि कोई सूसू करने जा रहा है आप साथ तो नहीं जाओगे. Exactly. और कुछ भी क्लू हो सकता है. So they were doing this way with us. Last season में लोगों ने करा होगा ना शीशे में लिख दिया कुछ पर्ची पे डाल दिया अंदर फिर तीसरा बंदा जा रहा है कि मुझे भी वॉशरूम जाना है. इतना लंबा चलता है वोट आउट. Of course bro. कितना घंटा लगभग? एक दिन तो 24 घंटे शूट हुआ है हमारा. मतलब एक दिन जो लड़ाई हुई है ना नाइट में जो फर्स्ट फाइट दैट यू हैव सीन प्रिंस भाई एंड गौतम वो सुबह तक शूट हुआ है 6 बजे तक. सनराइज देख के हम सोए भी नहीं है और आफ्टर लाइक 2 hours we have to get up back. Wow. Then we have to travel again, do our tasks in between that. Wow. So it was so very difficult guys. जिसको लगता है ना रोडीज बनना बहुत आसान है ये मेन रोडी वाला सीन है कि जहाँ पे आप सर्वाइव कैसे करते हो ऑन रोड वो मैटर करता है कि खुद की तबीयत नहीं खराब होने देनी हेल्थ को अच्छे से रखना है खाना प्रॉपर्ली खाना है जो आपकी बॉडी को नीडेड है समझ रहे हो और ठंड भी ना लगे क्योंकि जहाँ ठंड लगी और कुछ चोटें लगी तो आप गए. टेम्परेचर एक्सट्रीम होगा सिचुएशन एक्सट्रीम होगी ऑल्दो हमें लगता है स्क्रीन पे देखने में कि एक्सट्रीम नहीं है बट वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है. हाथ आपके ठंडे पड़ जाते हैं कि आप कोई चीज पकड़ भी नहीं पाते हो इतने ठंडे हो जाते हैं और लग्जरी नहीं होती और कोई लग्जरी नहीं होती. हमारे सीजन में तो नहीं थी. So yeah, please MTV. So ये सारे जो वोट आउट वाले थे सारे फैक्टर्स है वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस लेते थे प्रोडक्शन वाले. नहीं यार ऑफ कोर्स नो यार अब आप एक चीज बताओ एक शो चला रहे हो तो आपने 1 to 10 इसको कोई सोच समझ के रखा होगा ना. एग्जैक्टली हाँ तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट तो जैसे ही दिखा कि 4th लेवल पे आके है ना इसका नहीं हो रहा है तो अब मे बी मैं शायद इधर देखूं आप स्विच करके ना यहाँ रख दोगे ये थोड़ा ज्यादा स्पाइसी लगे. Exactly. तो वो उनके मूड के ऊपर है कि कहाँ पे हिट मिल सकता है कहाँ पे इनकी प्लॉटिंग शायद इसके अगेंस्ट हो सकती है तो इसको बचाने का कुछ रीजन हो सकता है कि नहीं. ओके तो जो कंटेंट देगा वो आगे तक जाएगा वो ऐसे ही जाएगा आगे. कोई अपार्ट फ्रॉम दैट डू यू थिंक कोई ऐसी मेमोरेबल जर्नी थी ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी इन रोडीज एनीथिंग दैट यू थिंक कि भाई दोस्ती यारी वगैरह मजा आया या फिर प्रिंस सर के साथ नहीं यार मैंने ना खुद सबसे बेस्ट मेमोरी दैट आई हैव फ्रॉम द जर्नी इज दैट आई एबल टू फाइंड माय ओन सेल्फ व्हिच वाज मिसिंग. समझ रहे हो कि मैंने खुद के साथ इतना टाइम स्पेंड करा इस जर्नी पे ना कि मेरे को एक्सटर्नल एनर्जी ना इफेक्ट नहीं कर पा रही थी. तो आई वाज सो विद इन माय सेल्फ एट पीस इन माय सोलेस विद लॉट ऑफ पीपल बट आई वाज एंजॉयिंग इट. Probably the best time of your life. Of course bro, why not? Because this show gives you a lot. Yeah. Respect इसलिए वो आपको खुद बनानी पड़ती है कमानी पड़ती है but respect and at the same time fame also. But fame के साथ जरूरी नहीं है ना कि आप वही चीजें करो. अब कितने सारे लोग हमारे शो में हैं जो फेम के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं. तो अब वैसा थोड़ा बनना है आपको. You have to create a different example. You have to be somewhere else. Yeah. तो बस Wow.
No यार, but I'm sure you must have had fun. मैंने बहुत सारा सुना था पराक्रम भाई से, शिवेत से, इन सबसे, हिमांशु से, इन सबसे सुना कि बड़ा मजा आता था हमारे सीजन में जब बाइक राइड्स होती थी ये सारी चीजें. I was one who was riding, and the other was Ashika, only in girls. Wow. But सुन के तो बड़ा मजा आया था मेरे को यार. Now getting to know that as well, it's super amazing. It is. Bro, moving on to the next one. This is the third one. This is El Diablo Ka Boom. Okay. Boom, bam. So this is all, mostly we have curated the underground brand of India. They make amazing hot sauces. The mood. Wow. Guys, I Bang don't on. eat spicy, but let's see. Why not? Bang on. Experiments. You have to maintain the same consistency throughout actually. Let's do that. Okay, that's you. How's it? What's up? Awesome. It's good, bro. Not spicy? Nope. Good. I'll remember that. You said that. I'll remember that. Okay. Last में भी यही होगा. I'm trying my best. Sorry. Okay. So, bro, third one is, are you still in touch with people from your season, especially Bhumika and Pihu and Bhumika, and also anyone else as well if you're in touch with them? That is one, and then second sub question is there, which I'll ask you once you answer Okay. this. I'm connected with the most of people. Okay. ठीक है, और काफी लोग हैं जिनसे बात नहीं होती, but good notion है. Okay. Because I can sense कि कहाँ energy लगानी, कहाँ नहीं लगानी है. Yeah. ठीक है, और कुछ bonds ऐसे हैं वो बहुत naturally create हुए हैं within a journey. Yeah. So I'm friend with a lot of people, but जिनके साथ मैं friends नहीं हूँ, वो बहुत pretty evident था show में. Okay. और वो ही real world में है. Never spoke after that, is it? No, not at all. Okay. Neither, the other person even tried. अब मैं ये No. Okay. It's a different question then. Sure, no problem. But apart from that, like, who all are you in touch with? Everybody, यार. Shiveth. Yeah, Vasu, Prakram, Ashika, Shiveth. Wow. Prakram से तो नहीं बोलूँगी, but it's a neutral bond. I don't hate him, I don't love him. As simple as that. Yeah. Nice. Yeah. No, we asked him, क्योंकि he came to the show उस time पे, फिर मैंने बोला प्रियंका गुप्ता का नंबर मिलेगा क्या? मैंने भाई यार है नहीं मेरे पास यार. Ashiki, we are not friends, so it's a very neutral thing. That Because he was more close to my ex. Yeah. So एक होता है ना कि नहीं हो सकता. मेरा भी बहुत अच्छा रूल है, तभी मेरे को प्राक्रम ने इसलिए hate नहीं करती मैं उससे. Because he chose somebody. Yeah. Or it's very obvious. Natural bond हो जाता है. True. Yeah. That way. Nice. Anyone that you hung out with quite recently, like? Everybody, they keep coming to Delhi. I keep traveling to Wow. Bombay. We keep traveling to other states also. Meet there, chill. We don't tell world that we are meeting, but we meet. Nice. When we need each other, we talk. क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि आप दिख नहीं रहे हो साथ में तो मे बी अरे ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट लाइफ दे जस्ट केम टू वन शो फॉर अ मंथ तो ठीक है हो गया सबकी अपनी लाइफ है हर किसी को थोड़ा ना कंटेंट क्रिएटर बनना है या हर किसी को थोड़ा ना एक्टर बनना है एग्जैक्टली किसी को कुछ और बनना होगा तो वो अपनी फील्ड की तरफ जाएगा तो ऑफ कोर्स टाइम बाउंड कम हो जाता है आपका मिलने का गॉट इट बट ऐसा होता है जब भी वो दिल्ली आते हैं एनीबॉडी दे ऑलवेज कॉल मी एंड आई ऑलवेज मीट देम wow next time I meet anyone from your season I'm going to talk about you and I'm going to tell कि प्रेम गुप्ता मिली थी and super amazing personality है bro literally so much. Bro I have a sub question here Okay. also and did you talk to Prem about that gali wala incident that happened Of course, because Prem just posted a video after that कि जिसमें उसने एक specific line बोली है कि मेकअप के साथ तेरी असली चेहरा भी दिखा दूंगा something like that. It was not for me, but he made a video out of it to post on his own profile. तो मैंने कुछ नहीं बोला. फिर एमडी वालों ने ना वही वाला क्लिप अच्छे से डाला जिसमें दिख रहा है क्लियरली ही सेइंग फॉर आशिका तो फिर मैंने वहाँ पे प्रेम को टैग किया फिर ऐसे हमारे ऐसे मीम्स बनते रहते हैं इट वाज वेरी वायरल मीम टू बी ऑनेस्ट एंड जब ये हो रहा था ना तो आई सेड द सेम थिंग टू प्रेम कि तू बोल ले आई नो यू डू कॉमेडी एंड ऑल तेरे को कंटेंट मिल जाएगा तो तू बोल ले व्हेन आई स्पीक यू डोंट स्पीक इन बिटवीन आई वाज लाइक ओके कूल जेंटलमैन प्रॉमिस okay so he was speaking I was quiet when I was speaking he didn't say anything okay as simple as that हाँ कुछ चीजें होती हैं कभी कभी मेरे को शायद आपकी कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी मैं बोल दूंगी शायद टोन अलग होगा exactly इमोशन आपका कुछ अलग होगा समझने का exactly तो वो थोड़ा हमारा अंडरस्टैंडिंग में और मैं अभी तो स्टार्ट हुई है जर्नी अभी तो मैं लोगों के नाम भी नहीं जानती अच्छे से true तो एक इंसान का गुस्सा लेना तो मैं तो नहीं ले सकती सॉरी but that became one of a very hilarious situation because उसने बोला मेंशन करा कि मैं जबकि मैंने बोला था दूंगी
तो there's a difference, right? But उसने जो बोला मैंने उसको बोलने दिया, मैं कोई बात ही तो बोल ले. But then I specifically mentioned again कि I didn't say this, I said this. Now it can happen. और मैंने कहा मारने की बात है ना, मैं वो भी कर सकती हूँ भाई. If you know what strap on means, so. Oh man, but yeah, that was really fun, man. That was probably the first time Sonu sir, Prince sir, Gautam sir, सब साथ मिलके हंस रहे थे, and you were like, what's happening here, my fuckers? Yeah. Oh fuck, no bro, that was super. Okay, bro, quickly moving on to the next one. We Okay, are let's do that. gonna have Nando's का peri peri hot sauce. ये तो खाया होगा शायद, जनरली भी खाया होगा. या मैं स्पाइसी नहीं खाती हूँ तो I don't know the taste of any of it. But how's it taste? Are you liking it? बेकार ही है. Very spicy, of course. Tangy लिया काफी. Okay. Okay. So now this one is, tell us a bit about your start. Like, you know, like let's say अगर मेरे को ये पूछना है कि प्रियंका गुप्ता है कि इनिशियली स्टार्टिंग से बचपन से लेके अभी तक, you know, the journey of प्रियंका गुप्ता, how has that been, and how, you know, your parents, you know, think about you now, you know, and how was it before? What all struggles that you have gone through and how you have reached here? Everything. Shit. I think everybody goes with the struggle. मेरा शायद कम होगा, आपका ज़्यादा होगा. मेरी स्टोरी मेरे लिए ज़्यादा होगा. But struggle से आप क्या बनते हो वो मैटर करता है. आज के टाइम पे मैं आपके सामने बैठी हूँ. This is my right now phase. Yeah. Where you can sense that, oh, I'm doing good. Oh, this girl has some brains to talk or anything like that. Yeah. तो जब आप जर्नी पे ग्रो करते हो ना, बचपन से अभी तक आप ग्रो करते हो, तो आप बहुत चीज़ें सीखते हो, पकड़ते हो, छोड़ते हो, राइट? तो मेरी लाइफ में बहुत सिंपल सा फंडा है, डिटैचमेंट मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है. मैं बहुत जल्दी डिटैच हो जाती हूँ. बट देयर वाज अ टाइम आई वाज अ पीपल प्लीजर. Okay. आई डोंट नो हाउ टू से नो टू पीपल. Okay. तो उसके चक्कर में बड़ी गालियाँ खाई हैं घर में. तो फिर मैंने खुद इन चीज़ों पे काम करा, फिर अलग चीज़ देखी, फिर कुछ आप जैसे लोगों से मिली, कुछ समझ आया. जैसे आप मेरे बारे में फीडबैक देते हो, तो आई एम श्योर यू आर नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाटएवर यू फेल्ट आफ्टर सेइंग मी, यू आर सेइंग दैट. Yes. तो जैसे फीडबैक मिलते हैं ना, तो आई ट्राई टू टेक सम एंड ट्राई टू लाइक अप्लाई इन अ डिफरेंट सिचुएशन टू सी माई सेल्फ. Yeah. तो वहीं से ग्रोथ दिखती है. बस मेरी ग्रोथ थोड़ी लेट इसलिए हो गई बिकॉज आई वेंट टू अ सोलो ट्रिप. I was in myself, so I wasted, like, I didn't waste it because that's the person who made me what I am right now. But वो टाइम थोड़ा कम हो सकता था. Okay. और वो जगह शायद कहीं और बेटर हो सकती थी. But I choose that place because I feel like I want to be alone. Nobody knows me. I want to be alone. As simple as that. तो जब आप अपने आप को देखते हो ना इस सिचुएशन में, तो you create something out of it. Because you're new. You don't know anybody. So there's no facade to create. Absolutely. So you can be you. So I believe कि यही जर्नी में मैंने सीखा है कि how can be you. कि लोग क्यों प्रियंका गुप्ता या ऐश गुप्ता को याद रखे, कि ऐसा क्या है उसमें. है तो इंसान, है तो लड़की, थोड़ा सा सुंदर दिखती है बस, उसके अलावा क्या. सो दैट मेक्स अ पर्सन आउट ऑफ इट. तो बस वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ लाइफ में. तो जब इनिशियली जब आप लेट्स से यू नो यू वुड हैव अपने 12th क्लियर किया होगा, मे बी यू वुड हैव बीन इन ग्रेजुएशन, उसके बाद में क्या आपने सोचा था कि मतलब यू नो फेम मेरे को मांगता है या फिर मेरे को? वो तो मांगता है. वो मेरे को स्टार्टिंग से पता था कि आई एम अ ब्लैक शीप ऑफ माय फैमिली. फर्स्ट आई न्यू दैट वेरी क्लियरली. तो मेरे को पता था इसकी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज करनी है. फिर मैंने देखा कहाँ सबसे, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बट कहाँ सबसे कम एनर्जी लगेगी एंड यू गेट द मोर आउट ऑफ इट, जिसमें आप सब कुछ हो सकते हो. तो दिस मीडिया फील्ड इज सम फील्ड जिसमें आप कुछ भी हो सकते हो. डिपेंड ऑन योर creativity. आप किस तरह की creativity है, how do you see the world, you can show the world and you can sense कि आपको क्या चीज़ें attract करती है. तो I was trying to figure out that and हुआ फिर ये same. I must say, you know, because जब you know I was researching about you again, you know, because मैंने तब तो episodes देखे ही थे, तब दोबारा मैंने बहुत सारे episodes देखे, audition सब कुछ दोबारा देखा. I went to Instagram and all of that as well. Right. A lot of other places as well, Reddit. तो you know, I've seen that a lot of girls, you know, really like your personality. No, bro, look at me. But genuinely, I mean, मतलब it was like I was wow. मतलब इसे कहते हैं ना कि मतलब I'm not sure if you're seeing those comments and all. Of course I am. I see every single followers by myself. ऐसा नहीं कि ऊपर करते जाओ देखो. I see my crowd. कि मेरा crowd क्या आ रहा है मेरे प्रोफाइल पे. जो मैंने अभी तक देखा है ना, it's like a top notch. Yeah, that is true. That is true. मेरे को
फालतू में फॉलोअर्स खरीदने की जरूरत नहीं है. मुझे पता है मुझे कम लोग देख रहे हैं बट बढ़िया लोग देख रहे हैं. Exactly. As simple as that. मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है. Yeah. मुझे सिर्फ यही थोड़ा करना है लाइफ में. तो आई नो वेयर आई हैव टू गो. और अगर आप अपने आप को ना इन चीजों में डालते भी हो ना तो आपको पता आप कहाँ जा रहे हो. Exactly. कि हाउ यू ट्राइंग टू गेट योरसेल्फ इनटू दिस लाइन, कि लोग आपको कैसे देखेंगे. तो यू हैव टू क्रिएट अ सर्टेन थिंग कि इधर एस्पिरेशनल इमेज बना के घूम लो या इधर बी रियल. जो रियल रहेगा ना, जस्ट गिविंग अ छोटा सा एग्जांपल कि मैं आई डोंट यूज अ लॉट ऑफ मेकअप, नॉट इवन मैं मेकअप तो यूज ही नहीं करती हूँ. ऐसा वाला सीन है अभी इसलिए क्योंकि आई बिन नॉट स्लीपिंग एंड ऑल. तो आज भी मैं गाड़ी में ड्राइव कर रही थी, मुझे किसी दूर की ट्रैफिक गाड़ी से किसी ने पहचान लिया. Wow. And I'm not kidding, bro. It happened. And they were like, "Oh, you're Priyanka Gupta, right?" I was like, "Yes." कहते, "Oh, we're a big fan." तो मैंने कहा, "Are you saying it because I'm like in front of you, or you don't like me or something?" Because ये taunt भी हो सकता है कि specific रोक के बोल रहे हो, "Oh, bro, I like you." तो although फिर उसे बोला, "No, we genuinely like you." तो उन्होंने मुझे कैसे पहचाना? Because I was not creating something which I'm not. I was being real. ये तो सिर्फ एक raw side दिखने का हो गया. Exactly. But कोई मुझसे जब मिलता है जैसे आप भी अभी मिले हो, तो you'll remember me with something good for sure. True. कि एक एनर्जी की भी बात होती है ना. Yes, yes. तो बस वो एक जो वो कहते हैं ना कि एक अमेजिंग पर्सनालिटी, अभी कहते हैं ना एकदम वाइब, एकदम चिल आउट दोस्त काइंड ऑफ पर्सनालिटी, कहते हैं ना यू आर एमिटिंग दैट काइंड ऑफ एन ऑरा राइट नाउ, व्हिच इज I have to, bro. Everybody have to. Yeah. Because life गान मानती रहेगी. that is true. तो रो के काट लो या खुश होके काट लो. Exactly. खुश होके काटोगे ज्यादा सुंदर दिखोगे. हाँ, वो ज्यादा बेटर है. तो yes, ज्यादा बेटर है सुंदर दिखे रोने में. Yes, लोग yes. ऐसे चुप भी करवाने आते हैं कि ओ प्लीज रो मत. अब तुम अगली भी हो जाओ, फिर दुख में भी रहो, सैड रहो, बीटी में रहो, तो nobody wants to talk to you. True. So you have to create your self love. Yeah. कि आप अकेले काफी हो to create or to have that kind of energy around in the room. लड़कों इसको अलग तरीके से मत लेना. No, I didn't mean it. What? If you know, you know. Oh shit. I don't know what I mean, that was a guy's joke. Okay, I couldn't get it. Okay, ठीक है. Moving on to the next one. Okay. This is Tabasco का Scorpion hot sauce. Okay, let's do it. छोटा पैकेट बड़ा धमाका it is. अब बता रहे हो इनडायरेक्टली या डरा रहे हो? नहीं मैं तो generally this is what I say. कह रहे छोटा पैकेट बड़ा धमाका. I know the trick. What's the trick? बस देख लेना लास्ट से जब पहुंचोगे. Then I'll disclose my trick. Let's see if the trick wins or our sauces. You seem the winner. Ah. Nice. Moving Spicy? on. Spicy? Not that spicy. ना मैं तो तभी ऐसे ना करूँगी जब आंसू भी निकल रहे होंगे. Okay. Bro, this one is, do you feel Vashu was better in task than Prakram and Shivit? And do you think, or if you think otherwise, then who was the actual winner for you? According to you. It's me, bro. Of course, me. But a second Ashika. second Ashika. Okay. Yeah, because she was actually a strong woman. मतलब अभी तक इतने टाइम से सीजन हो गया एक बंदी नहीं जीत रही थी, तो I made sure कि अगर मैं निकल भी रही हूँ ना तो nobody like take Ashika. But किस्मत कहते हैं ना कि और आशिका ने फिर मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग भी करी थी ना सेम सी उसमें, तो कर्मा इज अ बिच, यू नो. बाद में मेरे को लगा, पहले मैं गिल्ट ट्रिप में थी कि शिट आशिका केम आउट बिकॉज़ ऑफ मी. फिर जब मैंने देखा एपिसोड में, कहा ओहो everything happens for good. But do you think that ki Vashu was better than Prakram and Shivit, like overall? If I want to line up, I would say बोलने में Shivit was good. Performance wise, I won't say no at all. और वासु performance में is very good. क्योंकि अगर आपने नोटिस करा हो, वो जैसे ही दूसरी गैंग में गया था ना, he started performing. Yes. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लास्ट में एक टास्क कर रहा और जीत गया. No, he actually performed. Yes. पता नहीं, I don't know, somebody was telling me, somebody was speaking about this thing कि he just performed once and he won the whole season. How come it possible? Bro, it's possible because he performed. और वासु के साथ क्या है ना कि वासु है ना दूसरों को प्रूव नहीं करता. तो हमारी गैंग से निकला था ना, तो वो अपनों को बहुत प्रूव करता है कि आई कैन डू बेटर, यू नो, व्हाटएवर गिव्स मी आई कैन डू बेटर. तो वहाँ पे उसका है ना परफॉर्मेंस दिखा एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड क्योंकि ये बंदा है स्ट्रांग दिखता है. Exactly.
बट कर नहीं पा रहा कुछ। फिर बाद में समझ आएगी वो इतना प्रेशर में था ना, मतलब गैंग के अंदर, कि पीयर प्रेशर एक नाम की चीज होती है, लोग नहीं समझते इस इमोशन को, उनको लगता है छोटी सी बात है, नहीं बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए भी पहली बार था, ऑल्दो ही ट्राइड अ लॉट ऑफ इयर्स, बट उसके लिए पहली बार था। ऐसा तो नहीं हो गुड लुकिंग नहीं है, क्यूट है, चॉकलेटी बॉय है, गुड लुक्स। सो सेकंड इज sorry, I didn't like number it, but I was saying the character side of it कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कौन पहले तीसरा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए था। प्राक्तम को मैं कंसिडर नहीं करती हूँ, विनर मैं थर्ड टॉप 3 में भी कंसिडर नहीं करती हूँ उसे। वो तो पता नहीं बस हमने किस्मत से वो उसको बचा लिया, दया कर दी तो बच गया। But he was not a material who can win the show. Who do you think otherwise would have been in top 3? Top 3, me, Ashika, and थर्ड पे मैं वासु और शिवित को रखूंगी। Okay. Yeah. Okay. And ऋषभ? यार ऋषभ को क्या जरूरत है? नहीं मतलब जरूरत नहीं, बट डू यू थिंक क्या जरूरत है उसको? वो गैंग का इकलौता बंदा है, वो 9 लोग से वैसे प्यादे थे, वो मेन था बचाने। मतलब ऐसा नहीं होता आप चेस खेलते हो सिर्फ देयर इज ओनली वन किंग एंड आसपास प्यादे होते हैं उसको बचाते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो इट वाज वेरी वेरी मच क्लियर। जबकि जो शो में हमने बाद में देखा, जब हम अंदर थे ना, हमें दिख रहा था कि सिर्फ वो है और आसपास के ना रिया मैम देख के उड़ाएंगी, मतलब टाइम के साथ, कि इसका अभी जरूरत नहीं होगा तो इसको उड़ाओ, अब इसका नहीं होगा इसको उड़ाओ। बट अभी वो वेरी श्योर कि ऋषभ होने वाला उनका टॉप फेवरेट। और ऐसा नहीं वो परफॉर्म नहीं करता, वो इंसान अच्छा नहीं है, मेरे लिए वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने कभी ऐसा कोई बदतमीजी नहीं करी है। वो तो गेम में होता है ना कि अगर मेरे को अभी कुछ चीज स्पाइसी लगी, मेरे मुंह से गाली भी निकल जाएगी, मैं कुछ भी बोल दूंगी। तो गेम में दोस्त बोल देते हैं, तो वो लोगों ने ऐसे बना दिया कि वो क्राई बेबी एंड शिट लाइक दैट। अब आई सेड आउट ऑफ लाइक फन एज अ फ्रेंड, बस। तो बस ऐसी चीज है। But so you think that कि ideally Vashu was probably deserving, and then obviously you and then Ashika. I believe आपने क्या बोला, दोबारा बोलो। वासु was a deserving candidate. I mean out of the 3, me and Ashika. Yeah. Of course not, bro. I would have keep Vasu on the first. I will keep myself on the first, no? Then Ashika, then Vasu. No, I mean not hierarchy में, but हाँ otherwise वैसे top 3 में अगर बोलेंगे तो ये 3 थे। हाँ यार टॉप 4 होने चाहिए थे वैसे तो, बट ठीक है। Nice. Thank you so much for that, bro. Quickly moving on to the next one, and this is the spiciest hot sauce of India. It can't get hotter than this in India. है? Yeah. मतलब Indian hot sauces में। फिर और ले लेते हैं। Okay. नहीं ज़्यादा ये कभी लग रहा हो कि सिर्फ आप just putting a tip। नहीं ज़्यादा यार, लोग क्या कर रहे हो बोल। What is the Mallu roots? What Mallu? You said ना you're from Kerala too. मतलब मैं दिल्ली में रही हूँ, बट होता है ना फैमिली के फैमिली। So yeah. तो स्पाइस तो वहाँ पे खाते ज़्यादा साउथ में? Of course खाते हैं। Of course आप लगी। Yeah. Okay, so quickly taking your reaction. Okay. मैन एक्सप्रेशनलेस, लेकिन मिर्ची लग रही है। स्पाइसी तो है। हाँ स्पाइसी तो है यार। Okay. Yeah. So bro, this one, have you seen Splitsvilla recently? वाला Splitsvilla? जो शिवित वाला सीजन था? अभी वाला, हाँ recent। हाँ वो यार, that's a recent one. Yes, of course, I have to watch it. मेरे को देखना है मेरा फ्रेंड कहाँ पे जुतियाब कर रहा है। Okay, so do you feel that Jashwant and Akriti were the right people to win Splitsvilla? If not, then who do you think that should have won? See, first, I think Jashwant was a material to win the show. ठीक है, but not Akriti. कुछ लोग कहते हैं जशवंत भी डिजर्व नहीं करता था, बट ठीक है यार। बट फॉर मी द थिंग इज दैट मोर स्टोरी इज ऑल मोर अबाउट आकृति, एंड आई एम सेइंग इन अ वे क्योंकि मैंने उसको देखा है, वो हमारे साथ थी, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी बट थी। तो आई हैव सीन हर डूइंग इन अ वे कि शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑन कैमरा, शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑन ऑफ कैमरा। और ये नहीं कि छोटा सा फ्लिप साइड है, ये एक्सट्रीम फ्लिप साइड है कि इंस्टेंटली ये वो वाला सीन हो गया। कौन था हमारे साथ हमारे सीजन में? सचिन, जोगिंदर। यो, तो ये वो वाला सीन हो गया कि ही वाज लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ फिशी स्टफ ऑन कैमरा, बट जैसे ही कैमरा हटा गए, लोग बाहर गए, एंड ही इज एक्टिंग सो नॉर्मल। आई वाज लाइक ब्रो, आर यू लाइक इनसेन और व्हाट, कि यू आर टेलिंग मी टू चिल नाउ, फर्स्ट यू आर सेइंग समथिंग व्हिच लाइक प्रोवोक मी, तो व्हाट्स अप विद दिस। तो ऐसा ही सेम आकृति का था कि जिसमें शी वाज डूइंग ऑल गुडी स्टफ, लाइक
on camera and saying bullshit about the other people, and off camera she's all needy with everyone. Oh, give me this, no, give me that. Oh, this is so nice. All this butter thing. तो समझ आ रहा था कि अब इंसान देख रियल लाइफ में भी फिर ऐसे ही होगा ना वो. Exactly. जब वो रियलिटी में 1 महीने में किसी को बटर इतनी जल्दी कर सकता है, तो रियल लाइफ में सोचो लोगों को तो लोग नहीं पता होते, हम देखते नहीं है किसी की रियलिटी, तो वो कितनी बटर करता होगा अपने काम के फायदे के लिए. सो दैट्स व्हाई I don't think कि आकृति should be the person who win this title, Splitsvilla, whatever. And how do you think that Shivit, Naira, Sachin? शिवित तो अच्छा हुआ नहीं जीता, कसम से कह रही हूँ, अच्छा हुआ नहीं जीता, क्योंकि एक होता है विनर क्वालिटी और विनर पर्सनालिटी दिखती है. मतलब आप अच्छे दिखते हो, बॉडी अच्छी, डजंट मीन यू हैव अ गुड पर्सनालिटी. उसने 1% अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखाई है यार. ही वाज ऑल लाइक लवी डवी, और मेरा सर झुकेगा तो सिर्फ हमारी आई डोंट नो व्हाट बेटी के आगे झुकेगा, वरना किसी और लड़की के आगे नहीं झुकेगा. आप देख लो. और ये प्रेडिक्शन अभी से नहीं थी मेरी. मैं आई डोंट स्पीक अबाउट दिस थिंग विद माय फ्रेंड, नीदर आई स्पीक अबाउट दिस विद शिवित आल्सो कि व्हाट्स द अपडेट ऑफ योर रिलेशनशिप. बट जब वो आया ही था ना, I know my person. I know what kind of person he attracts, और कौन लोग उसके साथ सिर्फ क्यों है. तो I said it on very first go कि bro, this is not gonna be ended very cool. I don't know if it's you or it's her. But it was a very stupid move to go with this kind of girl. क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी वो बोलेगी कि मैंने सपोर्ट करा, जबकि वो ऐसा परफॉर्म भी नहीं कर रहा था. फिर वो इधर से बोल रहा है कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसने मुझे सपोर्ट करा. बट यू नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर. You just done the roadies. Of course he wants to be with you to get in that kind of frame. अब वो उसका गलती है, उसका एक्स वहाँ पे आ गया, whatever the shit happened. But according to me the winner should be someone. मेरे हिसाब से विनर कौन होना चाहिए था, मेरे को नाम क्यों नहीं याद आ रहे. दिग्विजय. अच्छा याद आ गया. नहीं, दिग्विजय ने तो अच्छा खेला. स्प्लिट्सविला दिग्विजय ने अच्छा खेला. बट बिग बॉस, ओह माय गॉड, ब्लेस हिज सोल. बट यार मेरे को नहीं लगता यार कोई था, मतलब कोई विनर क्वालिटी वाला. यार मुझे लगा ही नहीं, कोई भी नहीं लगा. Okay. मतलब मैं ऐसे वो नहीं होना चाहती कि oh I have to say something for the sake of saying no ठीक है, अगर नहीं है तो कोई नहीं है. I don't feel like ठीक है. Not even Shivit also guys. He's my very good friend. मतलब सगी है मेरा वो. Wow. But he's an amazing personality. We met him and super personality. We loved his personality. Yeah, super amazing guy यार. Again, इसी का भी एक सब क्वेश्चन है. Also about what's your take on Karanveer winning Big Boss and also Digvijay's journey in Big Boss? Now we came to the main question. I like it. You being like, oh, let's just cut to the chase. Yeah. Karanveer, I guess, दिल्ली से है ना? शायद क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे डाला था कि दिल्ली ट्रॉफी आई. बट उन्होंने एक चीज अच्छी नहीं करी जो मुझे लगता है कि he did the same thing what I've done in my season. कि उनके नर्व्स पे जाके बोला है, एक्सट्रीम जाके बोला है. बट जब आप एज अ विनर क्वालिटी मुझे वो नहीं लगे करणवीर. बट मेरे को था कि मे बी विवियन या Rajat Dalal would be the winner because they actually gave a lot. विवियन सर ने बहुत अच्छे से खेला, जहाँ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए वहाँ रिस्पेक्ट रखे, जहाँ लड़ना था वहाँ लड़े भी. बट ये है ना कि एक पिक्चर है, सारे सेम नहीं हो सकते, सबको अलग होना ही जरूरी है. बट एज अ विनर आई डोंट थिंक करणवीर शुड बी द विनर. या बिकॉज आप एक विनर का क्वालिटी भी तो देखते हो ना कि क्यों है ये विनर, लोग उसको आइडलाइज क्यों करेंगे. अभी क्या है, रजत दलाल भी बन जाता है ना, जो मैंने बोला कि वो भी बन सकता था, तो लोग है ना यही लड़ाई में आ जाते हैं कि जब ये बंदा बिग बॉस का विनर बन सकता है तो हम भी ये हरकत कर देंगे, हम भी धमकियां देना शुरू कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, कोई कौन पकड़ रहा है, हम आ जाएंगे ऐसे रियलिटी शो में. और जो लोग आज के टाइम पे कर भी रहे हैं, मोस्टली यही चीज बिक रही है. तो दिस इज नॉट कूल, दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ अ मीडिया ऑन दिस जनरेशन. व्हाट आई बिलीव कि नहीं होना चाहिए. और जो इस टाइम का बिग बॉस था ना, वो मेरे लिए वियर्ड इसलिए था बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग ऑन द नर्व्स. मतलब दिग्विजय हर किसी से तू करके बात कर रहा है. दिग्विजय विवियन इज लाइक अ सेम पर्सनालिटी, बिगर मतलब बड़ी स्क्रीन पे सलमान खान है, तो टीवी टेलीविजन पे विवियन है. yes. एंड व्हेन यू आर शेयरिंग द सेम स्टेज, अगर सलमान सर अगर घर के अंदर होंगे तो वो उनको सलमान नहीं करेगा. तब करे तो मैं मानूं, एवरीबडी इज इक्वल फॉर यू, देन डू इट. बट तुम नहीं करे शो के अंदर, तुम्हें लग रहा है कि इसकी तो मेरे को मारनी है बिकॉज हम दोनों एक ही लेवल पे आते हैं, बट एक सर्टेन वैल्यूज टांगे तुम्हारी.
इंडियन में क्या सिखाया जाता है, बड़े हो छोटे हो आपको तरीके से आपको पेश आना चाहिए, इवन आप गुस्से भी क्यों ना हो। एग्जैक्टली। रियलिटी शो है, गलतियां होती है, बट उस गलती की माफी कहाँ है? तो माफी भी नहीं दिखी मुझे वहां पे, तो इसलिए मुझे ना दिग्विजय की परफॉर्मेंस अच्छा करा बिग बॉस, इतनी मारी है ना जो दिग्विजय की, मजा ही आ गया टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जब तुम बदतमीज होगे तो बदतमीजी तुम्हें वापस मिलेगी, और उनकी इंटेंसिटी तो डबल होगी जो तुम ले भी नहीं पाओगे, जो उसके साथ हुआ भी एग्जैक्टली कि मेंटली वो ज्यादा इधर उधर हो गया। तो बट अब ठीक है, अब तुमने फसाद बनाया ना, अब उसी में जियो। तो you have to maintain his facade now कि oh I don't give a fuck about Big Boss, oh no। And do you think He Kashish overpowered Digvijay? काशिश ब्रो, मतलब उस बंदी ने ना वो चीज करी है ना जो बहुत बंदियों में दम लगता है, एक टाइम लगता है करने में। शी इज सो वोकल, वो किसी बुलशिट में नहीं। देखो स्प्लिट्सविला इज अ डिफरेंट कैरेक्टर, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू वाचिंग योरसेल्फ, बट जो सेकंड टाइम बिग बॉस में गई तो शी हैज ऑल टुगेदर अंडरस्टूड द गेम कि मुझे कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। एंड शी प्लेड सो नाइसली। आई वाज सो हैप्पी कि दिग्विजय पहले निकला और कशिश बाद में, क्योंकि वरना मलाल रहता कशिश को कि मेरी वजह से आया फिर भी मैं पहले निकल गई। एग्जैक्टली। क्यों कशिश बाद में निकली? कुछ तो देरी होगी ना शो में, जो दिग्विजय नहीं दे पा रहा होगा, जो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा था। बट कशिश बीइंग रूड, सो सेल्फ सेंटर्ड, शी वाज गिविंग रिस्पेक्ट टू एवरीवन नो मैटर हर सेम एज, और यंगर तो शायद से कोई नहीं था, but everybody was elder to her only, but she was giving equal respect to everyone. So that's why I love this woman, and the way she speaked and the way she's like there with her like looks and everything, I was like whoa, so wifey material. Wow. Wow. But and do you think that Digvijay overdid in Big Boss जो वो उसकी actually में real personality नहीं थी? यार आपने देखा है अविनाश इसको मिमिक करता है कहीं ना कहीं। सॉरी मैं नहीं बोलूँगी, मैं वियर्ड लगूंगी करते हुए, मैं नहीं चाहती ये शॉर्ट कटे। तो जैसे कबाड़ी वाले नहीं करते, बोलते हैं जैसे करते हैं, तो उसने उसको ऐसे मिमिक करा और अविनाश ने एकदम सही पकड़ा, क्योंकि दिग्विजय के साथ क्या वो लंबा नहीं बोल सकता, तो ये ना उसका दिख जाता है कि वो ज्यादा नहीं बोल सकता। तो अभी वो है ना सिर्फ स्माइल गेम पे गेम खेल रहा है कि मेरी स्मोक ही ऐसी है, किलर है, लोग हिल जाते हैं, थरथरा जाते हैं, उसको समझ नहीं आता। उसको भी पता है कि वो बोल ही नहीं सकता, तो इसलिए वो ज्यादा बोलता नहीं। और अविनाश ने जो उसको पकड़ा ना, मेरे को तो इतना मजा आया कि अविनाश डिड अ ग्रेट जॉब। चाहे वो जीते या ना जीते, उसने एक सही चीज पकड़ी कि उसको उसने डायरेक्टली हिट नहीं करा, उसी के आवाज को, टोन को उसी को दिया कि देख भाई हमें ये सुनने को मिलता है। Oh man, but big deal, your peers, going to Big Boss. Me? Like Digvijay, was in your journey as well in Roadies, साथ में था, और मतलब कशिश तो यार हमारे सीजन में तो वो ऐसा था, हर जगह ऐसे था। तो हमें ना क्या होता है, जब हम जर्नी पे होते हैं ना, हमें नहीं पता हम स्क्रीन पे कैसे लग रहे हैं, तो और हम एक दूसरे को भी इतना नहीं देखते, खुद पे देख ले काफी है। तो जब वो शॉर्ट बाहर निकल रहे थे, जितना भी टेलीविजन एपिसोड हमारा आ रहा था, तो उसमें उसके लुक शार्प है, बट ही इज वेरी लीन। उसका जो वोकल टेक्सचर है ना इज लाइक वेरी, तो वो उसकी बॉडी पे ना फिर वो वही देता है, जो मैंने बोला ना वी, तो वही लुक देता है। तो इसलिए ना वो विनर नहीं दिखता यार। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत अगली है, ही हैज वेरी गुड शार्प लुक, एशियन बॉय लुक, बट आवाज भी तो मैच करे ना उस लुक पे। अब आवाज ही ऐसी होगी तो स्माइल गेम ही खेलोगे बस आप। नेक्स्ट वन इज ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। So we are on the 7th one. Oh, let's go zombie together. Let's go zombie together. Cheers. Cheers. You're doing very well. You still have your 3 powers intact. All the 3 powers intact. So people know me, they know I don't eat spicy at all. अगर वो लोग देखेंगे ना, they'll go crazy if I can end up here. और तो नहीं होने वाला। There had been situations जहाँ पे people have cried and they were rolling on the floor, mostly guys, including me, including me as well in certain situations. But I don't know how you guys do it. It's very spicy actually. Yeah, although I've been doing it 40-50 episodes now, but whoa, how does it feel? Spicy? No. Wow. It was in somewhere between. I feel it, but I don't feel it. Okay. Thoughts on speculation of Gautam Gulati coming as a wildcard leader, a wildcard entry as a gang leader on Roadies this year? Good for him. करियर में कुछ और नहीं हो रहा तो कुछ तो कर ही ले।
अभी पहले वो एज अ कंटेस्टेंट नहीं आ पा रहे थे, फिर वो गैंग लीडर आए, फिर अब वो वाइल्ड कार्ड गैंग लीडर आ रहे हैं। मतलब देख लो टाइम पीरियड कम होता जा रहा है उनके, उसका पीरियड का। बस अच्छा है उनके लिए, गुड फॉर हिम। Any how was working with Sonu sir, Riya ma'am, Prince, Prince and Gautam bhai, everyone in सबके साथ? Okay, I haven't, like we don't spend a lot of time with them, but बहुत कम टाइम होता है जिसमें भी उनको अपना थोड़ा ज्ञान बताना होता है ना, कि we have already done this, do this way, that way. तो उस पीरियड में ना बहुत जल्दी हम समझ नहीं पाते कि what kind of person they are. But on a humanity basis, of course, everybody has this level of humanity कि जिसमें उन्होंने एक person to person भी बात करी है सबसे, कि if you need anything in the camp extra, we can provide you that. जैसे हमें कुछ नहीं था, जैसे सोनू सर हमसे मिलने आते थे, तो he used to bring fruits for everyone, क्योंकि उन्हें पता हमें कैंप के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, कोई लग्जरी नहीं है। तो whenever he comes to the to shoot with us, so he used to bring sometime fruits, sometime to eat, something to drink. Wow. तो we like that kind of side of सोनू सर, of course. और वो बहुत है ना hot है यार। See, person like me being gay, I'm saying that Sonu sir, because there was this time we were like shooting and he was taking his own shot with this own cameraman and he was running on the beach side, like there was a sand and he was running like topless and he's running, or somebody was explaining us कि now we have to do this way and nobody is looking at that person, everybody is like Sonu sir. वो जहाँ से गए हैं, वो जहाँ से आए हैं, किसी सबकी आंखें वही थी, because he was so firm and fit after this age also. उनकी हाइट भी कितनी अच्छी है, 6'3", yeah bro, he's very tall and maintain that kind of structure. Oh my god, he's so hot. And how was it working with Riya ma'am? Oh, Riya ma'am is so lovely. मतलब वो बहुत see यार, I don't like disrespect any girl around me. तो मैं कभी बंदियों को ना ऐसे नहीं बोलती कि ये अच्छी थी, बुरी थी, but altogether Riya ma'am was so someone who जो मेरा ना एक where you can relate कि why she's speaking this way, why she's not saying anything in between. क्योंकि रिया मैम इंटरैक्ट ज्यादा नहीं करती थी, वो सिर्फ अपने गैंग से कर ले, बहुत बड़ी बात है, तो इंटरैक्ट ज्यादा नहीं करती थी, तो हमसे इंटरैक्शन इतनी नहीं रही है। बट यार ऑफ कोर्स एक जर्नी पे आप साथ में हो, उनका भी फर्स्ट टाइम है, तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है, तो शी इज सेइंग समथिंग व्हिच वी लाइक लर्निंग। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी रिया मैम की, जब भी वो मिलने आती थी ना, जाने से पहले शी ऑलवेज गिव टू अ पॉजिटिव वाइब कि just enjoy this thing because it's not gonna come again. So yeah, that way. Nice. And Prince bhai? Prince bhai being Prince bhai, he's love. He's someone जो मेरे ना भाई की तरह नहीं होता, तुमसे लड़ भी लो, कुछ भी कह लो, फिर at the end of the day you're like, oh it's okay, क्या खाएंगे बताओ। ये वाला सीन है। तो उनके साथ है ना ये इसलिए हो पाया क्योंकि he actually, अब लग रहा है स्पाइसी, तो ये सीन उनके साथ इसलिए हो पाया, जो बॉन्ड है हमारा, क्योंकि उन्होंने जर्नी जी है, राइट, और उनको पता है कि कितना बड़ा स्ट्रगल है, इट्स नॉट इजी। जबकि प्रिंस भाई के सीजन में तो उनको होटल्स मिले थे, बट हमारे सीजन में डिफरेंट सीन आल्सो ऑल टुगेदर, तो उनको पता है कितना डिफिकल्ट है। तो द वे ही एक्चुअली लाइक गाइडेड एवरीबडी नो मैटर व्हाट, जो उनके बारे में बुरा भी बोला है ऐसे कुछ लोग, वो उनको भी बहुत समझाते हैं। तो मुझे उनका वो साइड बहुत अच्छा लगता है कि वो सबको ना बहुत न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये ज्यादा नहीं है, कम नहीं है। तो उनका वो एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंक्लूडिंग गैंग लीडर्स। ऑफ कोर्स यार, गौतम मैंने बता दिया है, प्रिया मैम मैंने आपको बता दिया, प्रिंस भाई बता दिया, सोनू सर बता दिया। आई वाज एक्सपेक्टिंग रन सर टू बी देयर टू बी ऑनेस्ट इन आवर सीजन, बट वो ये सीजन था एंड आई फेल्ट लाइक आई शुड बी इन दैट सीजन, बट आई वाज लाइक नो, आई हैव ऑलरेडी डन दैट, सेमीफाइनल तक हो गया है, तो व्हाट्स नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। बस वो एक्सपीरियंस रह गया, बट आई एम सो हैप्पी फॉर शिविर दैट ही इज एबल टू लाइक एक्सपीरियंस द होल थिंग, बिकॉज वी यूज्ड टू डिस्कस व्हेन वी वर इन द टेंट, जब हम रात में अपने टेंट वगैरह में जाते थे, तो वी यूज्ड टू टॉक बिकॉज मी एंड शिविर शेयर द सेम साइड्स, so we used to talk while sleeping and talk about Ransa, talk about the whole journey, and his experience कितने सालों से दे रहा है शिविर, या कितने साल मैंने दिया, तो वो फिर अब याद आता है क्योंकि now he is the part of MTV Dhoni's, you know, you're so proud about your friend, कि लोगों की जल तो रही होगी कि इतना नहीं डिजर्व करता, उसको ये मिल गया, because he's getting something which is like unconditional now. True. And ये सिर्फ उनको पता है जो actual Rudy से connected है. It's actually creating like a family.
तो He said it in a podcast as well that he respects Ranvijay sir to the next level. Like Of course. he's indebted to him for everything that he was saying. It was so overwhelming. It was really amazing to see that he respects him so much, and that we can see in the cameras as well, like on Of television. course, and he's respecting everyone also, although Yeah. he doesn't like few people around, but Yeah. he's still respecting because he got an opportunity which is like a lifetime opportunity. And probably in another few more years, I just don't- wish that he becomes a gang leader. Bro, say it for me, bro. Bro, yes, Against obviously. Shivit. No, bro, obviously you. Nee, as of well. course, Shivit also, but against Shivit. Yeah. Together. I mean, I guess that'll be You know, bad. it's a good banter gonna happen for sure. क्योंकि मेरा और शिवित का banter ऐसा जो लोगों ने नहीं देखा अभी तक. और हम बहुत लड़ते हैं. ऐसा लड़ते हैं कि हम एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें और दिख रहा है कि सर फाड़ देंगे एक दूसरे का. Wow. तो वो साइड अभी तक लोगों ने नहीं देखा है. उनको लगा ये दोनों शांत में बात करते हैं. No bro, we actually have a lot of hustle and tussle together. Wow. So, what's your take on Elvish coming to Roadies and becoming one of the gang leaders? What do you think about that? Waste. Yeah. Wow. Waste. That's it. Okay, and Neha ma'am coming after 4 years. Oh, that's fun. That's Super fun. fun. क्योंकि नेहा मैम का ऐसा है ना, जो वो टीवी पे सॉरी मूवीज में करती थी, वो उनका एक साइड वो कैरेक्टर है. Yeah. वो खुद नहीं है. हाँ. बट जब वो रोडीज में आए ना, और जो उन्होंने खुद का दिखाया कि वो क्या चीज है, वो ज्यादा सेल हुई. मतलब देखने वाइज भी ऐसा नहीं कि सिर्फ वो दिख रहे तो कुछ भी है, बट हमें पसंद भी आ रहा है वो. तो उन्होंने वो चीज मेंटेन करी. दैट्स व्हाई जेन्युइनली फेल्ट लाइक कि नेहा मैम भी हमारे सीजन में होनी चाहिए थी. एटलीस्ट 3 ही 4 लोग होने चाहिए थे, 2 लड़की 2 लड़के, जो इन्होंने इस बार ही करा. Yeah, and Ranvijay sir is back again as well. Yeah. Like everything happening in just Yeah. one single season. You should have been there as an insider as well. Like बट आई थिंक ये सारे एक साथ है ना, हाँ. तो मुझे नहीं लगता कंटेस्टेंट इतना कंटेंट फिर दे रहे होंगे. तो you think that ये बाकी लोग ज्यादा ओवर पावर कर रहे होंगे? Obviously उनको और ही इतना बड़ा है. या मुझे ऐसा लगता है. Who do you think will win? Which gang will win? सी ये मेरे को पता है, मतलब मेरे को वहां तक पता है जहां तक पता होना चाहिए. हाँ. पर उसके लिए मैं जवाब नहीं देना चाहूंगी क्योंकि इट्स गोना बी अ स्पॉइलर. Biased हो जाएगा. बायस तो जाएगा. एंड okay. तो बाकी मुझे लगता है कि शायद wait, let me see the characters and I'll tell you the who's the winner. Yeah. क्योंकि अभी फिनाले शूट नहीं हुआ है. Yeah. लास्ट ईयर वो गया था ना लीक, तो इसलिए इस सीजन दे डिडंट शूट फॉर द फिनाले. दे आर वेटिंग Okay. कि सेमीफिनाले दिख जाएगा, फिनाले कहीं शूट करेंगे, फिर हाँ. होगा वो भी उन्हीं के साथ. Okay. एंड इट्स अ गुड थिंग. Sure. थैंक यू. हमारे सीजन में कर लेते काश. बट एनीवेज, तो मुझे लगता है कि शायद एल्विश के ही गैंग से कोई जीतेगा, ऐसा मुझे लगता है. Okay. हाँ. And probably who do you think will be in second? आई थिंक सेकंड नेहा मैम के ग्रुप से. Oh. Yeah. Okay. She's a smart woman. She Yeah. know how to create things Yeah. and make yeah. it happen. Yeah. वो तुमसे काम करा देगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा. So far I've seen her journey on the roadies. Yeah. कि she has that kind of face कि तू बेटा कर ले अभी, Huh. but जब मेरे पास मौका आएगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा, मैं तेरे को उड़ा दूंगी. So yeah. Neha ma'am have recently started following us on Instagram. Yeah. Love it. Wow. Yeah. Wow. पर although जो मेरा पहला ऑडिशन था ना, तो मेरा जो मेन ऐसे खराब हुआ था ऑडिशन मेरा, तो वो नेहा मैम मेरी वजह से ही हुआ था क्योंकि वो कुछ बोल रही थी and I was giving something else. So we couldn't like get into even point. तो जहाँ पे वो ईगो पे आ गई, फिर मैं भी ईगो पे आ गई कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, you just saw me, you don't know me. Yeah. तो love for you नेहा मैम. रणविजय सर से कभी मिलो? Of course. How was it? अब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिली Oh, थी. okay. हाँ, it was like a very quick hello and hi. That's it. I just love him. Okay, I'll tell you. उनका जब वाला सीजन आया था, मैं बहुत ही बच्चा था उस टाइम पे, जब ये थर्ड सीजन था, आई गेस अमित इंदर वाला सीजन, आई डोंट नो, आई गेस थर्ड सीजन था. Okay. फर्स्ट आयुष्मान वॉन, सेकंड रणविजय सर वॉन, एंड थर्ड आई गेस पारुल शाही वॉन. तो उस वाला सीजन से आई स्टार्टेड टू, आई गेस आई वाज व्हाट, सेकंड या थर्ड क्लास में. तब भी मेरे को रोडी इतना क्रेज होता, व्हाई, व्हाट अ पर्सनालिटी एंड सच अ स्मार्ट गाय, सच एन इंटेलिजेंट गाय. वाओ मैन, well seriously I love that guy yaar, amazing. Of course कोई भी प्यार करेगा रण सर को. I mean he gives probably no reason for not to love him. उनका वाइब एनर्जी ऐसा है ना कि उनका कोई हेट नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो वो बहुत मिनिमल, वो सबको होता है. Exactly. तो हर कोई जो जिसके पास पावर नहीं वो बोलता ही रहता है. और इंटरनेट पे तो हर चीज को कुछ ना कुछ भी निकाल देगा बंदा. So, Exactly. but he is doing great job. Absolutely man, absolutely.
Yeah, it's so bang on. Yeah. Thank you so much for that, bro. Quickly moving on to the 8th one. Now, this is going to be a nuclear weapon. Nuclear weapon. This is the bomb beyond insanity hot sauce. Okay. ले यार ये ले ज़्यादा. We'll remember that. वो तो बहुत गंदा है. मैं बोलना भी चाहूँगी, मेरी टंग पे आ जाएगा. बोलो ना. नहीं तो नहीं करना. गाना सुनाना मेरे को अमल, कोई भी एक गाना हो जाए. देसी जा गीत आ ट्रैप च बीट आ सिर गज गज दे स्पीकर आजे वादे दे ब्राउन मुंडे. ब्राउन मुंडे. गाइस ये नेचुरल निकल रहा है. What? Moving on. Okay. Impromptu. आंसू निकल गए भाई. हेलो, पी लो यार. मिर्ची है ये. कभी कभी ऐसा बैकफ्लिप हो जाता है मेरी तरफ ही. ब्रो ले सकते हो. मिर्ची तो है. I can do this. Go ahead. So spicy. It is? It is. You can take it, no problem. Yeah, I know that. Have it. You have it. I have nothing to lose. I can have it. अच्छा. I'll take it if you want to take it, no problem. No, I don't want to. I'll also not take it then. Oh, no. No, man's ego nahi. I'm just supporting you. Okay. Ready? Yeah, ready. Let's do this. Okay. It's a timer of 30 seconds. And this is a game. In this, you have to name 20 roadies contestants in 30 seconds. And your time starts कोई भी एक सेकंड, कोई भी सीजन से कुछ भी. इसी सीजन से, आपके Okay. सीजन से. And your time starts now. शिवित, वासु, आशिका, प्रेम, जोगेंद्र, प्रियंका चौधरी, पेरी, ऋषभ, भूमिका, तनु, सचिन, मोगली. कितने हो गए? 12. 12 हो गए बस अभी. वेट. आकृति, ली, अनमोल हो गया? एंड 5 still left. ऐसी bro. Done. लगा ये कहीं ना जाके लगा. लगा? Bro, have it. It hit differently, bro. And because you were not able to do it, you'll have to take a dip of this again. क्या मैं ये पूरा 30 सेकंड में नहीं बोल पाई हाँ, इसलिए? इसलिए. Take a small one. I don't want you to not reach home. Take a small one. How do you feel? Scared. Take the power. I'll also take it. अभी लगने तो दो. हाँ बोल देना तो मैं भी ले लूँगा. Moving on. Whoa, you're built differently. Yeah, that's what she said. Okay, ready for the next one? Shoot. Ready? This is the 9th one. This is Anko. Anko. Sorry, this is Bravado का Anko masala. इतना स्पाइस लग गया, बंदा नाम ही नहीं बोल पा रहा है. Anko. What? This is Bravado का Anko masala. Okay. Yeah, this is the 9th one. Let's do this, Ash. Cheers. You sing one song. I'm not a good singer. Neither I was. मैं रैप कर देती हूँ जो मैंने लिखा है. करती जब मैं बात से करूँ मैं राह के हाथ से ना बोलती मैं खतरनाक है ज़ुबान कर दूँ 3 लाइनों में ही लाइफ तेरी नर्क में नर्क सी बना दूँ जिंदगी में लगे बोझ तेरे जैसे 6 से 5 लौने देखी थी मैं रोज़. बात है कला की तो कला के जैसा काम करिए गालियों का साथ दे के बेटे से ना बाप बन. ए बस that.
Bingo. Okay. Now it's going to be a rapid fire. Okay. And it's going to be a rapid fire. It has to be rapid, okay? Okay. Very fast, ultra fast. Okay. In this, I'm going to give you a few emotions, and you have to tell me who suits the best from your season of roadies for that. Okay. Best body. Best body, Shivit. Charming. Vasu. Cute. Cute, Tanu. Aggressive. Aggressive, Joginder. Cool. Cool, Ashika. Best actor or actresses. कोई भी जो बहुत अच्छा acting करता था. Oh my God, there's a lot of Akriti. Okay. And who's a good actor. It's a compliment, Yeah. by the way. Yeah. In a way, but if you know, you know. Actor, Joginder. Best dancer. Prem. Not Sachin. Okay. Honest. Oh, that's me. Witty. That's also me. Okay, Mowgli. Humble. I believe who's humble. There was nobody who were humble though, but Rajveer. Wild. Me. Husband material. कोई भी नहीं. Mannerless. Mostly people. One. Himanshu. Joker. Himanshu. Best dressing sense. Bhumika. Role model. हमारे contestant में थे. Me, bro. Overactor. Sachin. Nice. That's it. Yeah. Yeah. Great. Bro, this is the 10th one. Mad Dog 357. Can I just do one thing? I can dip every, like, can I dip in every? Up to your discretion. I can do it. With me. It's the last one, right? Yeah, it's your discretion, okay? Yeah, I also want to do it. You did it. Oh. ये तो मैं ले चुकी हूँ. नहीं, this is the 9th one, right? So, Cheers. it's a bomb for the bomb. I hope you survived this. No, nothing. Whoa. What's next? But really? Yeah. I must be क्या feeling मैं अभी भी something. सुंदर लग रही हूँ? इतनी मिर्ची खाने के बाद भी. Who? It is? No. She's built differently. Are you made of concrete? Not concrete, but yeah, some Guts. Yeah, a lot of guts actually. उड़ता हुआ तीर लेने की बहुत आदत है ना. Let's see. Okay, this is again rapid fire. इसके दो subsections है. The first one is never have I ever. Okay, never have I ever laughed so hard that I peed a little. I did. Never have I ever accidentally sent a text to a wrong person. A lot of time, bro. A lot of time. Never have I ever gone skinny dipping. Not yet. Never have I ever been on a blind date. Never. Never have I ever flirted with someone just to get something. Never. Done it in public. A lot of time. That's it. Now, sub question. Okay. Yeah. Tell to your audience what's happening in your life, what all new projects that we can see you in, and what's happening in your life. It's been a while that you're not that active as much as you were on Instagram, but we want to know what's happening in your life, what are things that are running. Are you dating someone right now? Okay. And yes, we're all we can see Priyanka Gupta right now. Okay, there's a lot of questions in one go though. 10 question के हिसाब से तो काफी ज़्यादा लंबा हो गया, but still I answer the whole question. कि okay, let's just ignore this part. ये तो होना ही था. So I'm not dating anybody, and very soon you're gonna see me on somewhere, which is like I can create a legacy out of it. Yeah. Can we get a hint? No. Okay, thanks. Yeah. Which is like so me. Okay. अब इतना हिंट काफी होना चाहिए. Keep solving this. Okay, Let's sorry. see. Take your time. It's okay. And apart from that, what else is going on in your life right now?
I'm just working on few projects, to be honest, and very soon it's gonna be out. Very soon, let's see. Yeah. And उसके अलावा I'm trying to be somewhere. उसके लिए काफी मेहनत लगता है. Okay. बस ऐसा चल रहा है. बाकी देखते हैं. Yeah. भगवान के ऊपर है. मेहनत तो करते रहेंगे. Wonderful, wonderful, wonderful. I just wish that everything and anything that you wish for in your life happens. मतलब जो भी चीज हो, everything you get. Okay, and you're genuinely an amazing person. I'm not saying because you came here, you have been such a sport, you completed this challenge. You're genuinely an amazing person. Love the way that you did this challenge. Not everyone was so sporty as much as you were. You fucking have some guts. You built up something else. Super amazing. I just wish luck, miracles, and everything to you. Bro, because you were able to do this so amazingly, we have something for you. Yeah! Guys, I didn't know कि इसका कोई perk होने वाला, but this is so sweet of you giving me this. And even I want to say the same thing to you. कि you should also like do great and be somewhere that you're planning to. And of course, we just got connected. Yes, we'll be in touch. Definitely. We'll be in touch. ये मैं नहीं बोल रही, मेरी अंदर की मिर्ची बुला रही है, पता है? How's your experience? How did you like it? How's this? एक second. Ooh, okay, back to the square one. Okay. How was your experience? It's fun. It's something which is I never thought that I'll be doing in my life, because this is a lot. What I'm feeling right now, guys, this is a lot. मुझसे बोला नहीं जा रहा. नम हो गया मेरा मुंह. तो मजा आया यार. It's a good concept. So far nobody has came this kind of concept in India. Yeah. So it's fun because ये usually मैंने बहुत सारे podcasts, international podcasts देखे हैं जिसमें round table होता है and they keep trying a different thing together. This is the first time in India. I'm very like not so happy about it, but Still no tears. still नहीं about to बस यहाँ पे आंखें नम. Wow. Who do you want and who do you want to challenge to come on this show and do this challenge? किसको challenge करना चाहोगे? I think I would say if I want to challenge somebody, I go for आपको प्रेम को बुलाना चाहिए. तो दो भाई एक साथ चैट की नहीं लगेंगे हम दोनों? हाँ. एकदम वैसे लगेंगे. क्या bro? वो मेरे जैसे भी लगता है. मेरे को हाँ, true. doppelganger लगता है. True. Definitely, Prem, we are after you now. Till we get it, we'll be after Priyanka. Bro, super amazing. You were bang on. You just amazingly nailed this challenge. And still, I must say, all the girls, they did amazing, and you actually lived up to that. No, I have to do it because a lot of girls gonna watch this show and this podcast, and I want them to show like yo. Super. Thank you. Got something. Thank you so much for coming on the show. You were super amazing. And for you guys, thank you so much for watching. Go follow Priyanka Gupta on Instagram and wherever that you are able to find her. Even if you meet her outside, कहीं पे भी सिर्फ प्यार दो, गंद मत फैलाओ. And life is too little. गंद फैलाने के लिए यार अपना लीन गाय शो देखो, उसके वीडियोस को देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को भाई, और कुछ मत करो, अपन लोगों को प्यार दो. एंड टेल अस who do you want to see next. Thank you so much guys for watching. Priyanka Gupta is signing off, everyone. Thank you so much. This is fun.